So as I think most of you are connected yesterday also. So in the class we have done almost adverbs. The last two exercises, the question numbers were left in do it yourself. So first we will do it, and then we'll, as you told yesterday, those students were offline. They said, ma'am, we want to have a discussion again on verbs. So we will continue with the topic verbs. Before that, we'll try to first finish the portion that was adverb. And then from next class, we will have a proper revision of English reader book. Okay. The reading skills and other things. I think the first one, which was write a suitable adverb in each blank, we have done yesterday. How many of you haven't done? Can they raise their hand? Those who haven't done that. Do it yourself for question number 1. कितने लोगों ने नहीं किया है? It is for online students also. They can raise their hand. Adverbs, do it yourself, question number 1. Okay. Okay, let's do it first. So I'm going to begin today's worksheets from question number 1. Okay. So that is write a suitable adverb in each blank. Rajiv watched the television happily. That is already written in your worksheet. वो लिखा ही हुआ है. No need of writing then. After that, I think somebody is writing with the mouth. Now, next sentence. He was waiting. Listen it carefully, please. First, you have to maintain the silence. Then listen the lines. Fill in the blanks. जहाँ होगा वहाँ मैं बोलूँगी, आप लिख लो. Okay. The next statement begins with he was waiting dash eagerly. E-A-G-E-R-L-Y. Waiting eagerly for his friends to arrive. He heard someone knocking at the door loudly. L-O-U-D-L-Y. Loudly. It must be my friends, he thought happily. आप यहाँ पे cheerfully भी लिख सकते हो, merrily भी लिख सकते हो, है ना? मतलब यहाँ खुशी खुशी से है. आप excitedly भी लिख सकते हो, है ना? He rushed to the door. He rushed to the door hurriedly. Spelling ध्यान से लिखो. H-U-R-R-I-E-D-L-Y. So the statement was, he rushed to the door hurriedly. And the spelling of hurriedly was H-U-R-R-I-E-D-L-Y. And opened the door quickly. Quickly. Somebody said yesterday, Priya said, ma'am, why not fastly? You know, fastly is more, will be more appropriate while something is running. You know, that it is that because fast you used to relate with speed. वो स्पीड से रिलेट करता है ना, तो हम लोग वहां पे फास्टली वहां पे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा rather than quickly. यहाँ पे quickly. There was no one at the door. He was about to turn back when he heard his friends sing happy birthday cheerfully. Happy birthday cheerfully. He welcomed them warmly. He welcomed them warmly.
WARMLY, warmly. Okay, done. Should I move to the next one? Okay, now the next question number 2. You tell your friend about a dance performance you have the conversation you have seen. Following is the conversation you have with her. Complete it using suitable words. 2 persons, me and my friend. Anna, now what is the conversation? Last night, we went to see a dance performance. Your friend. How did the dancer perform? I answered, she danced very gracefully. इसके पहले भी dancing का एक performance आया था. Question था ना? Dancer dances gracefully. Worksheet number 1. Worksheet number 1. Gracefully. आप beautifully भी लिख सकते हो. It will also correct. Gracefully. She danced very gracefully. 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 What was the response of the audience? People liked it so much that they clapped. Cheerfully is also correct, but loudly भी correct है. Excited, ये ना खुशी में खूब जोर जोर से ताली बजाना है ना, with lots of zeal. Excitedly भी लिख सकते हो आप लोग. ठीक है, आप cheerfully लिखो. cheer करना, cheerfully तब I think when the dance performance was awaiting. Excitedly, happily, loudly, right? Not excitedly. I wish 2 could have seen it. Were there any vacant seats? Some seats behind us lay unoccupied for some time. Really? Yes, but they too were later occupied. Latter. L-A. Morning. Busy somewhere? What to do? I should leave that and clean that one. That is most necessary thing right now. No? Then why are you focusing there? Yes, but they too were latter occupied. Some people are in the habit of dash latter. L-A-T-E-R. Latter, letter नहीं बोल रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ? Latter. L-A-T-E-R. Occupied. Some people are in the habit of dash arriving late. Always. उसकी आदत होती है हमेशा late आने. Always. A-L-W-A-Y-S. Always. Done. Now the number 3. In the following passage, one word is missing in each line. A slash has been placed where the word is missing. Write the missing word in the space provided. The first one has been done as an example. My mother cooks dash or slash. Cooking is the verb, है ना? She cooks food. How she cooks food? She cooks food well. I think it is written already. लिखा हुआ है ना? Well. ये क्या है? What is this adverb is giving you? Which type of adverb is this? If you are writing here well, adverb of manner. अगर मैं यही बात बोलूं, my mother cooks food every day, then this is adverb. And अगर मैं यही statement ऐसे बोलूं, my mother cooks food at my grandmother's home, then और अगर मैं ये बोलूं, my mother cooks food regularly, over time. ठीक है.
Now the next one. All these statements, whatever you are speaking, is being recorded. है ना? Okay. So first is already done. The next statement: she / bakes a cake on my birthday. Yes, we can write always. जिनकी माँ हमेशा केक बनाती हैं वो लिखिए always. जिनकी माँ नहीं बनाती है वो never भी लिख सकते हैं, है ना? But why? अच्छा, एक बात और बताऊं, जब भी कभी ऐसी कोई बात हो ना बच्चों, कहीं पे भी, as an educator and as a learner, I will suggest never attempt any negative virtue. Negative responses को, मतलब जो negative बातें हैं, है ना? जो नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है उसको आप अवॉइड करा करो. जैसे यहाँ पे हम लोग नेवर भी लिखेंगे तो इट विल बी अ करेक्ट वन, है ना? बट वी आर राइटिंग अबाउट आवर मदर, है ना? तो ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव. तो ऑलवेज, है ना? सो राइट डाउन ऑलवेज. इफ समबडी विल राइट मैम नेवर, मेरी माँ नहीं बनाती, तो आई विल नॉट टेल दैट ही और शी इज रॉन्ग. समटाइम्स लिख सकते हैं, ऑफन लिख सकते हैं, कभी कभी बनाती हैं, कभी कभी नहीं बनाती हैं, प्रायः बनाती हैं, है ना? हाँ, तो अभी यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे ऑलवेज. वी विल अटेम्प्ट द पॉजिटिव आंसर्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर ऑलवेज. ठीक है? नाउ I / invite my friends to a fest this year. जो लोग लगभग हर बार बुला लेते हो वो लोग लिखो ऑप्शन. अगर पिछले 2 साल का देखो तो नहीं बुलाते हैं किसी को भी, है ना? कभी कभी बुलाते भी हैं, जब जैसे कोई पूजा है हुआ या फिर बर्थडे में भी सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं, तो आप समटाइम्स भी लिख सकते हो. ठीक है? Then I told, ये आप खुद से भी लिखोगे. यहाँ पे एक प्रॉपर एडवर्ब डालना है हमें, तो आप यहाँ पे लिखो समटाइम्स. मेरे हिसाब से आप चाहो तो ऑफन लिख सकते हो. I sometimes invite my friends to a fest. This year my house was dash full of children. रेयरली नहीं टच करेगा. देखो, एक सूट ही नहीं करेगा, एक सुटेबल एडवर्ब डालना है. देखो, अगर मैं यहाँ रेयरली लगाती हूँ, माई हाउस वॉज रेयरली फुल ऑफ चिल्ड्रन. लिविंग बीइंग है, रेयरली नहीं होगा यहाँ पे. यहाँ पे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट राइट डाउन ऑलमोस्ट. माई हाउस वॉज ऑलमोस्ट फुल ऑफ चिल्ड्रन. My mother had dash seen so many of us gathered at one time. Never, often, है ना? यहाँ पे आप रेयरली लिख सकते हो, है ना? ना के बराबर she has seen. रेयरली, कभी कभी देखा होगा. So write down never. First one is well, then always, then sometimes. Nancy, write down or match your answers if you have written. Write down. Don't sit idle. बैठने के लिए आप लोग कनेक्ट नहीं होते हो. Well, first is already written. Second one is always. Spelling will be ALWAYS. Third is sometimes. SOMETIMES. Next is almost. 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 And the last one is never, NEVER. And your chapter is over. Done? Now, GRACEFULLY. Done? सबका हो गया? Adverb तब सब complete? अब बताओ तुम लोग. Now I'm giving an opportunity to the, देखो, जैसे अभी हमारा टोटल यूनिट्स कितने हैं इंग्लिश में जो हमें इस बार एग्जाम्स में कवर करने हैं. रीडर में फर्स्ट वाज ग्रोइंग अप, है ना? ग्रोइंग अप में हम लोगों को कितने, 2 चैप्टर, तीन है एक्चुअली. द फर्स्ट इज योर मंडे मॉर्निंग ब्लूज, एंड आफ्टर दैट टेल ऑफ द टेल एंड 2 पोएम्स, है ना?
बेसिकली अगर क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करेंगे तो दो ही है, दो स्टोरी, मंडे मॉर्निंग ब्लूज एंड टेल ऑफ द टेल। उसके बाद है हमारा बुक्स यूनिट, उसमें एक पोएम है, फिर द बॉय हु बोरोड बुक है ना। 3 यूनिट आपको एक्चुअली फर्स्ट टर्म में करना था। फर्स्ट वाज ग्रोइंग अप, सेकंड वाज बुक एंड थर्ड वाज द वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अभी ये होगा कि यूनिट वाइज में कराऊं, जैसे कल का अगर रीडर कल जो क्लास कनेक्ट कर लोगे तो कल उनके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे यूनिट 1 में, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, वी विल डू इट ऑन टुमारो, है ना। एक दिन में सारा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, दूसरे दिन सारा लाइफ स्किल करेंगे, तीसरे दिन वैल्यू बेस्ड करेंगे, फिर उसके बाद ऑपोजिट्स करेंगे, होमोफोन्स करेंगे, ऐसे। इससे क्या होगा, the things which are important according to the you can say the point of view of examinations, that will come in a list, इकट्ठा हो जाएगा आपका, है ना। तो उससे क्या होगा, जिनका जो भी पीछे छूटा हुआ भी है, they will not suffer। और बीच बीच में राइटिंग स्किल्स करते रहेंगे। अभी 10 डेज है ना हमारे पास, मोस्टली नॉट श्योर, अगर आपके एल्मनैक के हिसाब से अगर देखें तो अगर 13th शायद एल्मनैक में डेट है, प्रोबेबली नॉट श्योर, डेट्स विल बी अनाउंस्ड, वो अनाउंस होगा लेटर ऑन। बट अगर एक टेंटेटिव डेट भी मान के मैं चलूं कि 13 से आपका एग्जाम है, तो भी हमारे पास अभी करीब करीब 10 दिन है ना। तो आई थिंक दैट विल बी ओके फॉर द रिविजन्स। तो वैसे ही करेंगे। सो जो जिनका छूट रहा है ना, वो लोग रिविजन क्लासेस को नहीं लीड करेंगे, है ना। क्लास रिकॉर्डिंग्स देखो, क्वेश्चन आंसर्स वैसे ही मैं कराती जाऊंगी सब। अभी किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। somebody was जैसा शायद उत्सव ने मुझे कल कहा था कि मैम, am I correct उत्सव? He said, ma'am, we want a discussion on verbs. Verbs के लिए उसने कल कहा था कि मैम verbs फिर से एक बार करना है हम लोगों को। And how many students want? Because आपके तरह साइड से कुछ मुझे पूछा ही नहीं जा रहा है, लग रहा है सभी के सभी ज्ञानी हो गए हो। प्रैक्टिस बुक लाओ, और प्रैक्टिस बुक, सब चीज समझ में आ गया सबको। तो मैं कुछ पूछ लेती हूँ तुम लोगों से, है ना। You didn't want to ask, then I will ask some questions. आपको मैंने दिया, वेरी गुड, इसने तो किया भी नहीं। किसका बुक? यूनिट 5। अगर आप लोगों को कुछ नहीं पूछना तो आई विल आस्क, मैं ही पूछती हूँ, पूछो। चलो शुरू करती हूँ मैं अपना ही क्वेश्चन से। कंपैरिजंस को डिफाइन कर देती हूँ। Sure. Okay, one girl from our class. It is a revision topic for today, that is okay, qualities of subject. That is noun or pronoun. Wait, let me speak first. Can everyone can focus on the board right now? Please देखो ध्यान से, सब लोग यहाँ पे। और सबसे पूछ रही हूँ, board is visible? Online students, board is visible? Whatever I have written on the board? See, when we used to last, जब मैंने तुम लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था, तब भी मैंने तुम लोग को बताया था, comparison is all about the comparison of, यहीं पे देखो मीनिंग यहीं पे comparison बना हुआ है किससे? ठीक है, कंपेयर का मतलब तुलना,
ठीक है, मैं 3 लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ठीक है, दिस इज द शॉर्ट वन, है ना, ये लंबा है, ये इससे लंबा है, इससे, और ये जो है ये सबसे लंबा है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों एरोस को मैंने कंपेयर किया। व्हाट आई हैव डन, आई हैव कंपेयर्ड ऑल दीस 3 एरोस, है ना। द कंपैरिजन इज, नाउ व्हाट आई एम कंपेयरिंग, अगर मैं ये कंपैरिजन को मैंने किया, किस चीज की कंपैरिजन किया, इसकी लेंथ को। आई हैव कंपेयर्ड द लेंथ ऑफ दीस एरो, सो कंपैरिजन यही है। ठीक है, अलीशा वाकअप बेटा, है ना, ध्यान दो इधर। तो जब भी हम कंपैरिजंस की बात करते हैं, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट qualities, and when we used to talk about qualities, we are talking about adjectives. Qualities is all about adjectives. हमेशा याद रखो, वर्ब का कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो आप एडजेक्टिव्स का ही करोगे, आप क्वालिटीज का ही करोगे, आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का ही करोगे। ठीक है, तो कंपैरिजन मीन्स टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट विच इज योर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव का बात मतलब क्या, कि द क्वालिटीज द नाउन और प्रोनाउन इज हैविंग इन द सेंटेंस, लाइक हॉटनेस, है ना, कोल्ड, या फिर टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, शॉर्ट, इन्हीं के ना कंपेयर है। वो लंबा है, वो छोटा है, वो सुंदर है, वो नहीं सुंदर है, he is intelligent, he is not intelligent. What we used to talk about, these are your adjectives. ये क्या है, तुम्हारे adjectives हैं। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम हमेशा क्वालिटीज की बात करते हैं। और ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये 3 स्टेजेस में होता है। वो 3 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव कंपैरिजन, ठीक है, पॉजिटिव, फिर होता है हमारा दूसरा कंपैरेटिव, ठीक है, और तीसरा होता है यहाँ देखो, ये है हमारा P, ये है हमारा C, और ये हमारा S। ठीक है, हो गई। तो जब हम थोड़ा सा पॉजिटिव की बात करते हैं ना, तो देयर इज नो कंपैरिजन, यानी वो बेसिक स्टेट है ना, वहां पे कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, नो कंपैरिजन। मान लो किसी की सुंदरता को हम करते हैं, तो वहां पे मेरा एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ठीक है, नो कंपैरिजन एट दिस स्टेज। ठीक है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू, कंपैरिजन इज बिटवीन टू, मतलब यहाँ इसका जैसे हाइट की हमने बात की, तो 2 के बीच में कंपैरिजन है ना, यहाँ पे 2 के बीच में कंपैरिजन, लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं किसके बीच में, 2 के बीच में। तो जब कंपैरिजन 2 के साथ होता है तो वो मेरा कंपैरेटिव स्टेट होता है। ठीक है, जो हमारा सेकंड स्टेज ऑफ कंपैरिजन होता है। और थर्ड जो होता है वो हमारा होता है सुपरलेटिव, मतलब वो बहुतों से होता है। सुपर मतलब द बेस्ट, जो सबसे ज्यादा, यानी यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी, है ना। जब कंपैरिजन 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, वो होता है मेरा सुपरलेटिव स्टेज। समझी रश्मि? 3 स्टेज पॉजिटिव कंपैरिजन, 3 स्टेज पे होगा। फर्स्ट इज पॉजिटिव, जहां कोई कंपैरिजन नहीं होता, वहां बेसिक क्वालिटी आपको मालूम है, ये क्वालिटी है। जैसे आई एम गुड इन इंग्लिश, ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरे बारे में बताया जा रहा है कि भाई मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, है ना। आई एम गुड देन यू, सॉरी, आई एम बेटर देन यू, तो मेरी तुलना किससे हो रही है, प्रियांशु से हो रही है ना।
I am better than Priyanshu in English. My being मेरा जो इंग्लिश है वो अच्छा है किससे? प्रियांशु से. फॉर एन एग्जाम्पल, अब अगर मैं बोलूं my English is best, now my English is best in class 5C. My English is best in class 5C. तो ये मेरा सुपरलेटिव स्टेज, यानी क्लास 5 में मेरी इंग्लिश सबसे अच्छी है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई नो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, इट्स एन एग्जाम्पल, आप समझो इस चीज को. तो ये मेरा कंपैरेटिव स्टेज है, थर्ड स्टेज. जब तुलना नहीं है वो पॉजिटिव है, जब दो के बीच में है तो कंपैरेटिव है, जब दो से ज्यादा के बीच में है तब वो सुपरलेटिव है. अब उसको बनाने के भी कुछ तरीके हैं, चेंज करने के तरीके हैं, जो हम लोग कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद द रीडर बुक, है ना. सो टुमारो वी विल रिवाइज यूनिट 1 and 2 क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, 1 and 2 क्वेश्चन आंसर्स. रितिमा, नाइस बनाना, बट नॉट इन द क्लास.